Hello students, how are you guys doing? I welcome you to the platform of Infinity Vision, and this is Quantitative Aptitude Series Chapter 9. As you already know, in Chapter 8 we began combinatorics, so we are going to call this chapter as Combinatorics Part 2 because we are going to continue combinatorics. Now I've already mentioned you in the last chapter, so I'm repeating myself that combinatorics is one of the most important part of mathematics syllabus of the examination called NSCJS, PRMO and KVPY. If you are in class 9, you must be targeting for NSCJS and or PRMO. If you are in class 10th, you must be preparing for PRMO, and if you are in class 11th, you must be aiming for KVPY as well as PRMO. Now, if you look into the syllabus of mathematics in all the three examination, the combinatorics is there in all the three, and the level of the questions which they ask in these examination is somehow of the same level. That is why the preparation level also required of the same intensity. So if you are in 9th or if you are in 10th or if you are in 11th, no matter in which class, you have to understand this topic at the same level, at the same energy, at the same enthusiasm. Okay, so just need to focus here very strongly. If you are in class 11th and if you are here preparing for KVPY and PRMO and attending this combinatorics class, you have extra advantage because there is a chapter called permutation combination, which is nothing but combinatorics only in your NCERT syllabus, in your IIT JEE syllabus. So when we'll be beginning permutation and combination in our regular course, then you will have definitely a strong advantage if you are doing these questions which we are discussing here. And then also the NCERT level can be easily tackled if you are here right now and doing these problems. So without wasting much time, let me recap what we did in combinatorics part 1. We talked about factorials. We discussed what are factorials, what's the idea of factorials. Then we talked about some of the properties of factorials. Then we did few questions on factorials. After that, we talked about principle of counting. We talked about principle of addition and principle of multiplication. We understood when we need to multiply when we are counting and when we need to add when we are counting. We discussed both the cases. Then we did some problem solving. We did almost 15 questions in the last lectures. After that, we also gave you 25-30 questions in your assignment for combinatorics part 1. So we'll be continuing the combinatorics part 2 with the more problems. We'll be doing some few more problems, and then the next topic which we are going to cover in combinatorics is going to be combination. Combination is basically selection, so we'll be talking about combination. Then we'll be talking about NCR, and we'll be talking about the properties of NCR. So for today, these are the topic which we are going to cover. So let's begin the session. Let's get started. So the last problem was 15. So we'll begin our lecture with the question number 16. Let's read out the question. The question says, find the number of 4-digit numbers greater than 3400. So you have to frame the 4-digit numbers which are greater than 3400. You have to understand that the numbers have to be greater than 3400, and the digits you need to choose from 1 to 6. So 1 2 3 4 5 6. So basically you are going to choose these 6. You are going to fill those places of 4-digit number using these 6 digits only, with repetition allowed. So here the question mentions that repetition is allowed. Normally in permutation combination question, they either mention that repetition is allowed or they mention repetition is not allowed. Sometimes they do not mention either. So when they do not mention either, by default take it repetition is not allowed. When they have not mentioned anything, always consider that repetition is not allowed, or try to read the intention of the question paper or the question maker. You will be able to figure out that with repetition you have to do it or without repetition. But in most cases, if you are getting hazy in your idea, then you can definitely go for without repetition when it is not mentioned. Okay, but here the question is that they have already mentioned that repetition is allowed. So what you need to do is you have to have 4-digit number where repetition is allowed, and these 4 spaces needs to be filled from these numbers. Repetition is allowed and the number has to be greater than 3400. So I can break the story in 2 cases. One is case 1. Case 1 में मैं क्या कर सकता, and the other would be case 2. Case 1 में I can say the let's call this as unit place. This is tens place. This is 100 place.
and this is thousands place. So in case 1 I can say 1000 place के लिए मैं choice डाल देता हूँ 4, 5, 6. So in case 1 whatever we are going to do, the 1000 place will be occupied either by 4, 5, 6. So definitely case 1 में जो भी number बढ़ेगा वो 3400 से definitely बड़ा होगा. So all the 4-digit number would be greater than 3400. So this is one case. The case 2 we are going to do is we are going to pick 1000 place. We are going to fix it as 3. The 1000 place we are going to fix it as 3, and 100 place we are going to call it. It is either going to be 4, 5 or 6. Why? Because the moment I put 3300 or 3200 or 3100, it definitely gets smaller than 3400. So if I have to get any number bigger than 3400, so I have to start with 100 place either with 4, 5 or 6 if the 1000 place is 3. So let's see how to, and when you have case 1 and case 2, so principle of addition comes into play, that in cases what we do, we add. So let's start solving this problem. So जैसा कि मैं देख सकता हूँ, मैं ये प्लेस थाउजेंड्स हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया, ये टेंस हो गया, ये यूनिट्स हो गया. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 4, 5, 6. 3 choices. I have 3 choices here. Here how many choices I have? Since repetition is allowed, we all know that repetition is allowed, so I can put, we can pick all the number from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly यहाँ पे भी मैं क्या डाल सकता हूँ? All the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? Any number from 1 to 6. तो अब देखते हैं सबके पास, मेरे हर बॉक्स के पास कितनी चॉइस है. इसके पास 3 चॉइसेस हैं, इसके पास 6 चॉइसेस हैं, इसके पास 6 चॉइसेस हैं, और इसके पास 6 चॉइसेस हैं. राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी 3 into 6 into 6. राइट? इट्स एन ईजी थिंग. आई एम श्योर क्या कहते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा सोचने में. लेट्स लुक हेयर. This is going to be your 1000 place, this is going to be your 100th place, this is going to be your 10th place, this is going to be your units place. 1000 place के लिए आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है 3, so you have only one choice. यहाँ पे आपके पास 3 choices हैं 4, 5, 6, right? यहाँ पे आप 1 to 6 कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे आप 1 to 6 कोई भी नंबर ले सकते हैं. Why? Because repetition is allowed. अगर repetition नहीं allowed होगा, आप असाइनमेंट में ये क्वेश्चन करेंगे when repetition is not allowed, तो इसका क्या आंसर होगा? राइट? चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इसके पास कितना चॉइस हो गया? 1 चॉइस हो गया. यहाँ पे कितना चॉइस हो गया? यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6. सो ये क्या बन गया? तो ये केस 1 का ये आंसर है, केस 2 का ये आंसर है. और सिंस इट इज अ केस ऑफ इट्स अ स्टोरी ऑफ 2 केसेस, तो केसेस में क्या होता है? एडिशन होता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? ऐड. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 3 into 6 into 6 into 6 plus 1 into 3 into 6 into 6. So I can take 3 into 6 into 6 common. So this is going to be 6 plus 1. So this is 18 into 6 into 7. That makes it 108 into 7. That makes it 756. So there would be 756 number, 4-digit numbers, which would be greater than 3400 and formed from these 6-digit numbers. I am sure आपको ये सवाल समझ में आ गया है. देखते हैं फिर से. आप देख सकते हैं इसमें क्या था कहानी. आपके पास था पहले स्पेस पे 4, 5, 6, तो आपके पास 3 चॉइस था. यहाँ पे आपके पास 6, यहाँ पे आपके पास 6, यहाँ पे आपके पास 6. तो दैट इज 3 into 6 cube. That makes it 648. And here you see you have only one choice, that is 3. You have 3 choice, so you have right 4, 5, 6. You have 6, 6. So that makes it 6 into 6 into 3. That makes it 108. So 108 ये हो गया आपका 108, और ये आपका हो गया this. तो इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा? 756. ऐसे भी आप देख सकते हैं हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया. Let's go to the next problem. Find the number of odd integers between 30,000 and 80,000 in which no digit is repeated. In which no digit is repeated. अब देखिए क्या है, 30,000 से बड़ा होना चाहिए
और 80,000 से छोटा होना चाहिए। डिजिट रिपीट नहीं होगा, लेकिन डिजिट क्या होंगे? 0 से 9। डिजिट्स कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं? 0 से 9 आपको। और वो क्या होने चाहिए? ऑड इंटीजर्स। देखिए सारे कंडीशंस पे ध्यान रखिए। तो बेसिकली मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है। कितने नंबर डिजिट बनाने हैं? 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर में मुझे पता है कि इट हैज टू बी ऑड। ऑड मतलब लास्ट डिजिट हैज टू बी 1 और 3 और 5 और 7 और 9। इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं डाल सकता, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन ऑड नंबर। अब यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे आप 0 से 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 0 लेने से क्या हो जाएगा? ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। सो ये 1 to 9 आपको सोचना है। लेकिन 1 to 9 में आपको ये पता है कि इट हैज टू बी ग्रेटर देन 30,000। तो डेफिनेटली ये जो कहानी होगी वो 3 to 9 होगी। क्या होगी? 3 to 9 ही आपको डिजिट यहां पे ले सकते हैं, लेकिन 9 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 80,000 से आपको छोटा होना है। तो 3 to 8 ही ले सकते हैं। इनफैक्ट 8 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 80,000 सबसे स्मॉल हो गया। उसके बाद तो आप 3 to 7 ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? 3 to 7 ही ले सकते हैं। अब 3 to 7 आप देख रहे हो, तो अब दो केसेस बनेगा कि आपका जो पहला स्पेस है, जो 10,000 प्लेस है, वो या तो इवन है या तो ऑड है। क्योंकि अगर ये इवन है तो लास्ट डिजिट पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट प्लेस पे अगर आप कोई ऑड फिलअप करते हो तो यहां पे वो चीज नंबर नहीं डाल सकते, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो केस 1 आप ले लीजिए। क्या? केस 1। और फिर दूसरा ले लीजिए केस 2, जिसमें मैं 10,000 प्लेस, बीच में ये 3 हो गया और लास्ट में ये हो गया। मैं 10,000 प्लेस पे यहां पे आपके लिए 3, 5 और 7 की चॉइस रखता हूं, मतलब ऑड की चॉइस रखता हूं। और दूसरे केस में मैं क्या करता हूं? दूसरे केस में मैं यहां पे इवन की चॉइस रख देता हूं। इवन के लिए क्या कौन कौन सा नंबर मैं पिक कर सकता हूं? 4 and 6, राइट? बिकॉज 3 से 7 तक ही नंबर हम ले सकते हैं। तो मैंने 10 केस 1 में मैंने 10,000 प्लेस पे 3, 5, 7 रखा और यहाँ पे 4, 6 रखा। अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अभी देखिए, जैसा आपको पता है कि यहाँ पे आप 3, 5, 7 रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप 3, 5, 7 में से किसी एक को भी चूज कर लोगे तो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। दैट इज वाई ये करना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसके पास कितना ऑप्शन है। हमारे पास 10,000 स्पेस के पास कितना ऑप्शन है? इसके पास सिर्फ है 3 चॉइसेस, राइट? अगर हम इसमें से कोई भी एक पिक कर लेते हैं तो इसके पास कितनी चॉइसेस है? इसके पास 5 चॉइसेस होती अगर इसमें से हम कोई भी ऑड नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे हम एक ऑड पिक ऑलरेडी कर चुके, तो इसके पास कितनी चॉइस बचेगी? 5 नहीं, कितनी चॉइस बचेगी? 4। अब इनके पास कितनी चॉइस बचेगी? सिंस मैंने 2 डिजिट ऑलरेडी यूज कर लिया, एक डिजिट यहां से और एक डिजिट यहां से, तो डेफिनेटली इसके पास कितनी चॉइस बचेगी? आपके पास 0 से 9 में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। उसमें से आपने 2 डिजिट यूज कर लिया, तो इसके पास कितनी चॉइस बची? 8। इसके पास कितनी चॉइस बची? 7। इसके पास कितनी चॉइस बची? 6। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट डिजिट में आपने 3, 5, 7 में से कोई एक ऑड नंबर ले लिया, तो लास्ट डिजिट में जो 1, 3, 5, 7, 9 था, उसमें से 3, 5, 7 में से कोई भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर 10,000 के पास 3 चॉइसेस है तो यूनिट प्लेस के पास 4 चॉइसेस है। बीच में बचता है ये तीनों, तो इन दोनों के पास 8, 7 और 6 चॉइसेस है। सिंस तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कहानी हो जाएगी 3 into 8 into 7 into 6 into 4। दिस इज द स्टोरी ऑफ केस 1। इसको ध्यान में रखना है। आइए इस पे देखते हैं। केस 2 में इसके पास कितनी चॉइसेस है? इसके पास 2 चॉइसेस है। इसको ऑड नंबर रहना है। इसके पास कितनी चॉइसेस है? 1, 3, 5, 7, 9। इसके पास 5 चॉइसेस है। देखिए यहाँ पे 4 हो गया था, यहाँ पे अभी भी 5 है। इसके पास कितनी चॉइस होगी? इसके पास अभी भी 8 चॉइस होगी, क्योंकि एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, एक डिजिट यहाँ यूज हो गया। तो टोटल 10 डिजिट में 2 डिजिट यूज हो गया, तो 8 डिजिट बचा है। इसके पास 7 डिजिट, इसके पास 6 डिजिट। तो ये क्या हो गया? 2 into 8 into 7 into 6 into 5। तो अगर मैं केसेस है तो केसेस में क्या होता है? केसेस में एडिशन होता है। तो पहला केस 1 क्या था? 3 into 8 into 7 into 6 into 4। और केस 2 क्या था? केस 2 था 2 into 8 into 7 into 6 into 5। अब गौर से देखिएगा, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। सो 8 into 7 into 6 कॉमन ले लीजिए। ये क्या हो गया? 12। ये क्या हो गया? 10। तो ये बन गया 56 into 6 into 22। ये क्या बन गया?
56 into 6 is 336 into 22. 336 into 2 क्या होता है? 672 into 11. 6720 672. देखिए क्या आ रहा है आंसर? 927392. So the answer is going to be 7392. So these many numbers lies between 30,000 and 80,000 odd numbers where no digit is being repeated. Okay, so this is what the answer is going to be. Let's go to the next problem. Question number 18. Find the sum of all 5 digit numbers. Find the sum. अब नंबर नहीं पूछ रहा है, सम पूछ रहा है. Sum of all 5 digit number that can be used from this 1 2 3 4 5 if repetition is not allowed. Repetition is not allowed. अब ये कहानी हो गई है कि आपको टोटल 5 digit numbers जो भी बनेंगे उनको जोड़ना भी है. Now this is something like let's makes you little panicky, right? लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, फाइव डिजिट नंबर है. लेट से आप पहला केस ले लो एक, मतलब अभी बस ऑब्जर्वेशन में देखो, उसके बाद आप पैटर्न पकड़ लोगे. आपने पहले केस में नंबर डाल दिया 1. कितना डाल दिया? 1 डाल दिया. तो ऐसे कितने नंबर बना दोगे आप? 4 फैक्टोरियल. कितने नंबर बन जाएंगे? 4, क्योंकि इसके पास 4 चॉइस है, इसके पास 3 चॉइसेस, इसके पास 2 चॉइसेस, इसके पास 1 चॉइसेस है. लेकिन ये जो है, ये 4 फैक्टोरियल नंबर पे 1 अभी भी इस प्लेस पे रहेगा. तो 1 का जो भी वैल्यू है वो क्या रहेगा? 1 2 3 4, राइट? 10,000 इंटू 4 फैक्टोरियल. एटलीस्ट 1 पे जो वो वैल्यू तो यही रहती है ना. आप किसी नंबर को इसी तरीके से देखते हो. अगर आप कहते हो 1 2 3, तो बेसिकली ये नंबर क्या है? 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 0. ये आप क्लास बचपन में पढ़े थे, 6th 4th 5th क्लास में, राइट? तो आप क्या कह सकते हो इसको कि 10,001 अगर इस प्लेस पे है तो बेसिकली 4 फैक्टोरियल में इसकी वैल्यू यही रह जाती है, राइट? अगर मैं दूसरा केस लूं और यहां पे 1 डाल दूं, तो यहां पे 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000. कितनी प्लेस वैल्यू है? 1000. अभी भी इस 4 बॉक्सेस को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं? 4 फैक्टोरियल से. तो क्या हो गया? 1000 इंटू 4 फैक्टोरियल. उसी तरीके से जब मैं यहां पे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 4 फैक्टोरियल. जब मैं इसको यहां ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा? 10 इंटू 4 फैक्टोरियल. और जब मैं यहां ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा? 1 इंटू 4 फैक्टोरियल. अब देख रहे हो, मैं सिर्फ 1 की बात कर रहा हूं कि 1 के बारे में क्या हो रहा है. सेम केसेस में अगर मैं 2 को यहां पे डाल दूं, क्या करूं? यहां पे इसके बदले मैं डाल देता हूं 2 को. लेट्स से यहां पे मैंने 2 डाल दिया, तो ये क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल. फिर यहां पे भी 2 डालोगे तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल. तो आप कह सकते हो 2 पे 2 इंटू 10,000 इंटू 4 फैक्टोरियल. फिर 2 इंटू 1000 इंटू 4 फैक्टोरियल. फिर आप देख सकते हो 2 इंटू 100 इंटू 4 फैक्टोरियल. फिर 2 इंटू 10 इंटू 4 फैक्टोरियल. उसी तरीके से 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल. सेम कॉन्सेप्ट 3 के लिए होगा, सेम कॉन्सेप्ट 4 के लिए होगा, सेम कॉन्सेप्ट 5 के लिए होगा. तो आप लॉजिक देखो क्या आ रहा है. आप सिंपल सी बात देख रहे होगे. 1 के साथ आप क्या देख रहे हो? आप 1 के साथ देख रहे हो कि 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 10 to the power 4 into 10 to the power 3 into 10 to the power 2 into 10 to the power 1 into 10 to the power 0. उसी तरीके से 2 के लिए आप यही देख रहे थे. उसी तरीके से 3 के लिए भी आप यही देख रहे थे. उसी तरीके से 4 के लिए आप यही देख रहे थे. और उसी तरीके से 5 के लिए आप वही देख रहे थे. तो बेसिकली क्या हो गया? इन सबको ऐड करना होगा, क्योंकि सारे प्लेसेस में जो भी 1 की प्लेस वैल्यूज थी, जो भी 2 की प्लेस वैल्यू थी, जो भी 3 की प्लेस वैल्यूज थी, जो कि 4 की और 5 की प्लेस वैल्यूज थी, मैंने सबको ऐड कर दिया. दैट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ ऑल नंबर्स, राइट? तो अब क्या हो जाएगा ये देखिए. 4 फैक्टोरियल कॉमन है. 10 to the power 4 plus 10 to the power 3 plus 10 to the power 2 plus 10 to the power 1 plus 10 to the power 0 भी कॉमन है. इसमें क्या आ जाएगा? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, राइट? इसको कहते हैं 4 फैक्टोरियल. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5. और ये क्या हो जाएगा?
सिंस सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स क्या होता है 5 इंटू 6/2, दैट मेक्स इट 4 फैक्टोरियल का 24, ये हो गया 15 और ये कितना हो गया 1 1 1 1। तो देखिए क्या हो गया 360 इंटू 1 1 1 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए 1 1 1 1 1, इसको 36 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बन गया 6 6 6 6, राइट 5 6, देन यू हैव 5 3s, क्या बन गया 6 9 9 9 9 3, आगे 0 ऐड कर दो, तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 digit numbers from that can be formed using the digits from 1 to 5 when repetition is not allowed. This is going to be the answer. Okay bachcho, so let's move to the next problem. So I'm just taking a 1 minute break and then we'll continue with the next problem. तो अभी आपने देखा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए मैंने सिंपल सी बात कही है कि आपके पास 5 digit नंबर है, अगर 1, लेट्स से, लेट मी टेक अनदर, लेट्स से अगर 1 यहाँ पे रहेगा तो इसकी वैल्यू तो 10,000 होगी। अब 10,000 24 फैक्टोरियल जैसे नंबर के, मतलब 4 फैक्टोरियल 24 नंबर तक 10,000 यहाँ पे प्लेस ऑक्युपाई करेगा, तो इसकी वैल्यू तो 10,000 ही रहेगी और वो भी 24 टाइम्स रहेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 10,000 इंटू 4 फैक्टोरियल। सेम पैटर्न, अब जब यहाँ पे 1 आएगा तो इसकी वैल्यू 1,000 रहेगी और 4 फैक्टोरियल तक रहेगी, तो मैंने इसको ये कर दिया। तो मैंने सारे वंस को जब देखा तो ये कहानी बन के आई। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं 2 के साथ लगाता तो 2 अगर यहां पे रहेगा तो 20,000 बनेगा और 4 फैक्टोरियल नंबर्स के लिए वो 20,000 की काम करेगा। फिर जब 2 यहां पे रहेगा तो वो 2,000 का काम करेगा, जब 2 यहां पे रहेगा तो 200 का काम करेगा, 2 जब यहां रहेगा तो 20 का काम करेगा और 2 जब यहां रहेगा 2 का काम करेगा। सेम पैटर्न फॉलो करेगा, बाकी 4 फैक्टोरियल तक वो नंबर वैसे ही रिपीट करता रहेगा। सेम वे अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 30,000 का, यहाँ पे 3,000 का, यहाँ पे 300 का, यहाँ पे 30 का और यहाँ पे 3 का। वैसे ही 4 का 40,000 4,000 440 एंड 4, एंड सेम वे 50,000 5,000 550 एंड 5। तो सेम वे, तो मैंने उसको सबको पैटर्न ब्रेक कर दिया। इस पैटर्न में देख लिया कि ओके दिस इज गोइंग टू बी फॉर 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग फॉर 3, दिस इज गोइंग टू 4, दिस इज गोइंग टू बी 5। सो व्हाई नॉट ऐड ऑल द प्लेस वैल्यूज सो दैट वी कैन गेट द नंबर, राइट। जैसे आप सिंपल सी बात अगर कहो, अगर मुझे 790 को 840 से ऐड करना है तो मैं कह सकता हूँ ना 700 प्लस 800, एंड देन लेट्स से इधर 7 है और लेट्स से इधर 2 है, देन आई कैन से 90 प्लस 40 एंड देन आई कैन से 2 प्लस 7। बात बराबर है, राइट, सब ऐड हो जाएगा। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी सेम एज दिस। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हैंडल किया। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द सम ऑफ 5 digit नंबर ऑब्टेन्ड बाय परम्यूटिंग 0 1 2 3 4। ये ट्रिकी है। ये ट्रिकी क्यों है? क्योंकि आपको 5 digit नंबर यूज करना है, परम्यूटेट करना है 0 1 2 3 4। सिंस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप विदाउट रिपीटेशन मानेंगे, और परम्यूटिंग का मतलब भी होता है इन दोनों को अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट का मतलब होता है। तो आप क्या कह सकते हो, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप डेफिनेटली जानते हो कि अगर मैं यहां पे, अगर मैं ये 5 digit नंबर बना रहा हूं और यहां पे अगर मैं 0 डाल दूं तो ये 5 digit नंबर नहीं होगा, क्या होगा, ये 4 digit नंबर। लेकिन यहां पे मैं जब भी 0 रखूंगा तो यहां पे जो भी नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 4 digit नंबर। क्या बनेगा वो, 4 digit नंबर। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इसको भी 0 2 3 4 1 को मैं 5 digit नंबर कंसीडर कर लूंगा। क्या कर लूंगा, इसको मैं 5 digit नंबर कंसीडर कर लूंगा। मतलब मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 आए या ना आए उससे मैं छुटकारा पा लूंगा। तो ये हो जाएगा, इसको मैं कंसीडर किया 5 digit नंबर, उसके बाद मैंने सबका ऐड निकाल दिया। तो
तो इसमें क्या हुआ, ये सारे कैटेगरी एक्चुअली में 5 डिजिट नंबर नहीं है, ये एक्चुअली में 4 डिजिट नंबर है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं एक कहानी लिख सकता हूं, 1 2 3 4 से 4 डिजिट नंबर्स बना सकता हूं, और जितने भी 4 डिजिट नंबर का सम होगा वो निकाल सकता हूं। ये सम और ये सम 1 है, ये सम 2 है, तो मैं सम 1 माइनस सम 2 करूंगा तो मेरा आंसर 5 डिजिट का आ जाएगा। आप समझ में मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस 5 डिजिट नंबर में 0 को इंक्लूड कर लूं एज ए फर्स्ट प्लेस, तो इसमें जो 5 डिजिट नंबर का जो मैं सम निकालूंगा उसमें 4 डिजिट भी ऐड हो गए, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे 4 डिजिट का अलग से सम निकालना होगा, और वो 4 डिजिट किससे बनेगा, 1 2 3 4 से। तो मैं इसका अलग से सम निकालूंगा, तो इसको मैं S1 कह दूंगा, इसको मैं S2 कह दूंगा, और फाइनली आंसर क्या दे जाएगा, S1 माइनस S2। ठीक है, अभी करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से देखते हैं, अगर ये जो 5 स्पेसेस हैं, मैं 0 के लिए कोई वो नहीं रख रहा हूं, तो जब अगर यहां पे 0 रहेगा, जब यहां पे ये 0 रहेगा, तो 4 फैक्टोरियल, 0 का वैल्यू क्या हो गया, 10,000, 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 0। सिंस यहाँ पे 0 है तो कोई मतलब नहीं है, बट पूरा पूरी 0 हो जाएगा, लेकिन आपने बस कंसिडर वो किया है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल नंबर्स डाल सकते हो, क्योंकि हर बाकी 4 नंबर के पास 4 चॉइसेस, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, राइट। सेम कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो 1 के लिए, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल will go with the same thing, 2 with 4 factorial go with the same thing, 3 into 4 factorial goes with the same thing, 4 into 4 factorial goes with the same thing। तो मैं इन सबको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू ये क्या है, ये हो गया 1 1 1 1 1, है ना, 5 1 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। 0 का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही आउट हो गया है, राइट। लेकिन इसको मैंने सम 1 का, इसको क्या कहा है, S1। तो S1 में अगर आप गौर से देखो तो आपका S1 का आंसर क्या आया है, S1 का आंसर आया है 4 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 4, इसका एडिशन क्या होता है, 4 इंटू 5/2 दैट इज 10, राइट, इंटू 10। ये जो सम निकल के आया है उसमें ये वाला केस भी मैंने कंसीडर कर लिया, जब 0 इस प्लेस को ऑक्युपाई कर रहा था, 10 टू द पावर 4 के स्पेस को 0 ऑक्युपाई कर रहा था, तो वो सारे नंबर्स क्या हो गए, वो सारे नंबर्स हो गए 4 डिजिट नंबर। तो अब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, मैं S2 निकाल सकता हूं, सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बाय परम्यूटिंग 1 2 3 4, और फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सम ऑफ 5 डिजिट क्या हो जाएगा, इट वुड बी S1 माइनस S2, राइट। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, सो लेट्स सॉल्व इट। रेड ले लेते हैं, तो पहले आप देखिए 4 डिजिट के लिए ले लेते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं यहां पे 1 फिलअप करता हूं तो यहां पे कितने चॉइस होंगे, 3 2 1, 3 फैक्टोरियल, सो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 कहां तक जाएगा, 10 की क्यूब तक जाएगा, राइट। उसी तरीके से 1 अगर मैं यहां पे डाल दूं तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर। उसी तरीके से 1 यहां डाल दूं तो 10 का 1 और 10 टू द पावर 0। सेम वे 2 यहां पे आ सकता है, 1 के बदले 2 आ सकता है, तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, सेम कहानी, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, सेम कहानी, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, सेम कहानी। अब इस सबको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कॉमन, ये कितना है, 1000 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 डिजिट आ जाएगा, इंटू 1 से 4 तक एडिशन हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसको सॉल्व करो, देखो नए पेज पे ले लेते हैं। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस करना आना चाहिए, राइट। इसको मैं रिप्रूव कर देता हूं। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका S2 आ गया है, तो S1 माइनस S2 ये क्या है, ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10। तो S1 माइनस S2 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4 5, है ना, इंटू 10
माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4 इंटू 10। अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब हम, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 बार 1, ये हो गया 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 4 बार 1। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 3 फैक्टोरियल और 10। सो 10 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 60 बाहर आ गया। अंदर बचा 4 इंटू 1 1 1 1 1, 5 बार 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 4 बार 1, राइट। तो अब देखिए क्या हो गया 60 इंटू 5 बार 4 माइनस 4 बार 1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आई एम श्योर आपको ये आता है कैसे करना है, राइट। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 4 4 5 बार 4 है, इसमें 4 बार 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 3 3 3 3 4। तो इसको मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 3 8 98 25998। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 0 ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 25 लाख 25,99,980। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चालाकी की, वो ये कि मैंने जीरो पे कोई कांस्टेंट नहीं रखा। तो यहां पे जब मैंने जीरो पे कोई कांस्टेंट नहीं रखा तो क्या हो गया, मेरे को 5 डिजिट नंबर मिल गया जिसमें जीरो फर्स्ट प्लेस पे भी था। तो बेसिकली जीरो जब फर्स्ट प्लेस पे था तो वो एक्चुअली में 4 डिजिट नंबर था। तो मैंने 5 डिजिट नंबर को एक साथ ऐड कर दिया, कंसिडरिंग दैट जीरो कैन टेक प्लेस द पोजीशन ऑफ 10,000। तो उसको कंसिडर करते हुए उसमें डेफिनेटली मैंने 4 डिजिट नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया, तो उसको अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 4 डिजिट का ये चालाकी की, ये चालाकी आपको पता है, दोनों को कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट किया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। कैलकुलेशन था इस सवाल में, लेकिन आई एम श्योर आप इसको हैंडल करना जान जाओगे। नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप 10th 11th के बच्चे आई एम श्योर जल्दी सीख जा रहे होंगे, 9th के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, घबराना नहीं है। फिर से वापस जाओ, देखो कहीं पे फंस रहे हो मुझे फोन करो, अमरजीत सर को फोन करो, आदित्य सर को फोन करो। कोई अगर नहीं कहीं से रिस्पांस मिल रहा है तो सीधे मुझे फोन करो, मैं फोन नहीं उठाऊं तो 2 बार करो, मैसेज डालो, लेकिन मैं तुमको कॉल करूंगा। ओके, सो तुम जैसे लिखोगे आई विल कॉल यू बैक एंड आई विल मेक यू श्योर दैट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपको घबराना नहीं है, बस बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 20th प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। सेम कहानी है, हम जीरो पे कोई कांस्टेंट नहीं डालेंगे। तो जब हम जीरो पे कोई कांस्टेंट नहीं डालेंगे तो जीरो जब जीरो थाउजेंड्स प्लेस पे आएगा, 4 डिजिट नंबर बनाना है, जब जीरो थाउजेंड्स प्लेस पे आएगा तो इसका मतलब एक्चुअली में वो 3 डिजिट नंबर है। एक्चुअली में क्या है, वो 3 डिजिट नंबर है। तो हमें फिर फाइनली क्या करना होगा, मुझे 3 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना यूज करना होगा यूजिंग दिस, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो आइए पहले देखते हैं। लेट्स से पहला डिजिट मैंने 0 डाल दिया, तो कितने नंबर्स में यहां पे डाल सकता हूं, यहां पे मेरे पास चॉइसेस कितने हैं, यहां पे मेरे पास 4 चॉइसेस है, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड। तो यहां पे मेरे पास 4 चॉइसेस है, यहां पे मेरे पास 3 चॉइसेस है, यहां पे मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। ठीक है, जब जीरो को मैं यहां डालूंगा, सॉरी यहां पे मैंने 0 डाल दिया। ठीक है, तो जीरो जब थाउजेंड प्लेस ऑक्युपाई कर रहा है तो मेरे पास ये चॉइसेस है। जीरो जब यहां पे आ जाएगा, जीरो जब यहां पे आ जाएगा तो यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2। सेम स्टोरी जब जीरो यहां पे आ जाएगा तो 4 3 2, और जब लास्ट डिजिट जीरो आ जाएगा तो 4 3 2, राइट। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि 0 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4, सॉरी 4 डिजिट है ना, 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 0। सेम लॉजिक से मैं 1 के लिए भी ऑपरेट कर सकता हूं, सेम लॉजिक से मैं 2 के लिए भी ऑपरेट कर सकता हूं, सेम लॉजिक से मैं 3 के लिए भी ऑपरेट कर सकता हूं, और सेम लॉजिक से मैं 4 के लिए भी ऑपरेट
कर सकता हूं, यह भी हमने सीखा है, राइट। तो आइए, तो हमने बेसिकली जीरो पे कोई कांस्टेंट ना रखते हुए ये सम निकाल लिया, तो क्या हो गया, जीरो पे कोई ना कांस्टेंट रखते हुए हमने क्या किया, 4 × 3 × 2 कॉमन था सब में, उसके बाद 4 बार 1 10⁻³ इंटू 10⁻² प्लस 10⁻³ प्लस 10⁻² प्लस 10⁻1 प्लस 10⁻0 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, राइट। तो ये हो गया मेरा सम S1। इट इंक्लूड्स द 3 डिजिट नंबर ऑल्सो बिकॉज जीरो वाले केस को भी हमने ऐड कर लिया। तो अब S2 निकालना है। S2 के लिए हमें क्या चाहिए, S2 के लिए हमें 1 2 3 4 को यूज करते हुए 3 डिजिट नंबर का सम निकालना है। कितने का निकालना है, 3 डिजिट का सम निकालना है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस है, यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइसेस है। तो 100 जब 100 प्लेस पे है, जब 100 प्लेस पे है तो इसके पास कितनी चॉइसेस है, 10 3 × 2। जब 1 यहां पे आ जाएगा, जब 1 यहां पे आ जाएगा तो सेम कहानी, जब ये राइट उसी तरीके से क्या होगा, ये कहानी 2 के लिए भी सेम कहानी स्टार्ट होगी, 3 के लिए भी सेम कहानी स्टार्ट होगी और 4 के लिए भी सेम कहानी स्टार्ट होगी। तो S2 क्या हो जाएगा, देखिए S2 हो जाएगा 3 × 2 इंटू 1 1 1 इंटू 1 + 2 + 3 + 4। अब S1 मिल गया, S2 मिल गया, सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। S1 क्या है देखिए, 4 × 3 × 2, 4 बार 1 एंड देन 10। देखो ये क्या होता है, 1 से लेके 4 तक का एडिशन क्या होता है, 4 + 3 7 7 + 2 9 + 1 10। वैसे भी कर सकते हैं आप, ट्रायंगुलर फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर से। तो ये हो गया 10 माइनस S2, देखिए क्या है, S2 है 3 × 2 111 एंड देन 10। सो 3 × 2 111 × 10। आइए देखते हैं कॉमन क्या है सब में, 3 × 2 कॉमन है, 3 × 2 कॉमन है, 10 कॉमन है, 10 कॉमन है, तो मैंने 60 बाहर निकाल दिया। ठीक है, 60 कॉमन है, 60 बाहर निकाल दिया। ये क्या बन गया, 4 4 4, 4 बार 4। और ये क्या बन गया, तो बेसिकली 60 × 4 3 3 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होता है, 6 से पहले कर दीजिए। ठीक है, 60 है तो एक 0 और लगा दीजिए, क्या बन गया, 2,59,980। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो अब आप देख रहे हो, आप पहले सिर्फ लास्ट क्लास में आपने सिर्फ काउंट करना सीखा था, वेरिएशन सीखे थे, अब आप नंबर्स का सम निकालना भी सीख गए विथ लिटिल लॉजिक, राइट। आगे बढ़ते हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज कॉम्बिनेशन। अभी तक हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन होता क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। परम्यूटेशन जैसा कि आप जानते हैं वो शफलिंग होती है। परम्यूटेशन में क्या होता है, आप शफल कर रहे होते हो। देखो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको फर्क समझना जरूरी है। यहां पे है परम्यूटेशन और यहां पे मैंने लिख दिया कॉम्बिनेशन। देखो दोनों में फर्क क्यों है, क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर परम्यूटेशन यूज करना चाहिए, कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, या कब परम्यूटेशन यूज करना चाहिए, कब कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, क्योंकि शफल तो आप कर ही लोगे, कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए, सिलेक्ट करना आना चाहिए। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, शफलिंग। परम्यूटेशन का मतलब होता है शफलिंग। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। ये है शफलिंग, ये है सिलेक्शन। शफलिंग करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। शफलिंग करते हो तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑर्डर। सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें कहा राम एंड श्याम, फिर दूसरा ग्रुप बनाया श्याम एंड राम। बताओ ये दोनों ग्रुप अलग है क्या, सेम ग्रुप है। राम एंड श्याम कहो या श्याम एंड राम कहो, सेम ग्रुप है। अब ईना मीना डीका कहो, या मीना डीका ईना कहो, या डीका ईना मीना, ऐसे करके 6 बार आप कह सकते हो, लेकिन वो सब क्या है, एक ही ग्रुप है। तो कॉम्बिनेशन में क्या कहानी होती है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर परम्यूटेशन में क्या होता है, परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ईना मीना डीका है, ईना
मीना डी का। अब इसको शफल आप कैसे कर सकते हो, इसको शफल आप कर सकते हो 3 फैक्टोरियल से, है ना। लेकिन ईना मीना डी का कहो, या मीना डी का ईना कहो, या डी का ईना मीना कहो, या ईना डी का मीना कहो, या मीना ई का डिका कहो, या डी का मीना इना कहो। ये देखो क्या है, आपने 6 पॉसिबल तरीके से शफल किया, लेकिन ये सब एक ही ग्रुप है। क्या है ये, एक ही ग्रुप है, सिलेक्शन एक ही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। दीज ऑल वुड बी कंसिडर्ड वन व्हेन इट कम्स टू कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में आप शफल करते हो, कॉम्बिनेशन में आप सेलेक्ट करते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में क्या है, देखते हैं, गौर से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। A combination of object is merely a selection। क्या कह रहा था मैं, सिलेक्शन। Suppress order, order is not important from a given lot of object। अब इना मीना डी का ले लियो, आप किसी भी ग्रुप से इना मीना डी का उठाओगे तो इसी तरीके से उठाओगे। A combination is just a set। मैंने देखा ये सेट हो, ये सेट हो, ये सेट हो, सब एक ही सेट है, सब में इना मीना डी का ही है। एलिमेंट्स ऑफ विच आर नॉट अरेंज इन अ पर्टिकुलर वे। तो यही चीज आपको डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो चीज मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। तो परम्यूटेशन आपको पता होना चाहिए। परम्यूटेशन मतलब शफलिंग, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब सेलेक्ट करना, कॉम्बाइन करना, सेलेक्ट करना। परम्यूट मतलब एक इधर उधर शफल करना, राइट। परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स शफल कर रहे हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। सिलेक्शन में मैं आम उठाऊं, एप्पल उठाऊं और बनाना उठाऊं, किसी भी ऑर्डर में उठाऊं, सिलेक्शन इज सिलेक्शन, राइट। अगर मैंने एप्पल बनाना और मैंगो उठाया, फिर मैंने मैंगो एप्पल और बनाना उठाया, या मैंगो बनाना एप्पल उठाया, किसी भी ऑर्डर में उठाया, लेकिन उठाया क्या, एप्पल मैंगो बनाना, यही 3 चीज। तो सिलेक्शन एक ही तरीके से हुई। तो सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज को सॉल्व करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की जरूरत होती है। तो बेसिकली आपको रिलाई करना है हमेशा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे, और कॉम्बिनेशन का मतलब समझना है और परम्यूटेशन का मतलब समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। लेट से मैं क्लास में गया, ठीक है, ये एक क्लास है, लेट से ये मेरी क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बच्चे, ए बी सी डी ई एफ। अब 6 बच्चों में मान लो मुझे एक बच्चा चाहिए। लेट से मुझे काम कराना है, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में, या मुझे क्या कहते हैं मार्कर मंगवाना है, या कुछ भी कोई काम है, मैंने, मुझे एक बच्चा चाहिए काम के लिए। तो मेरे पास चॉइस कितनी है, तो आई हैव टू चूज 1 आउट ऑफ फ्रॉम 6। चूज 1 फ्रॉम 6। मेरे को क्या करना है, मुझे चूज करना है, या आप इसको वर्ड एक और यूज कर सकते हो, सेलेक्ट करना है। मुझे चूज करना है या सिलेक्ट करना है एक बच्चा, कहां से, उन 6 बच्चों से। चूज और सिलेक्ट 1 फ्रॉम 6। तो इसको मैं बार बार लिखने से अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6 चूज 1। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 6 चूज 1, जिसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया 6C1। अब देखो ये लिखना ज्यादा आसान है या ये लिखना ज्यादा आसान है, तो डेफिनेटली 6 चूज 1 लिखना ज्यादा आसान है, तो मैंने इसको लिख दिया 6 चूज 1। अब 6 चूज 1 का मतलब क्या हुआ, मुझे 6 बच्चों में एक बच्चा चाहिए। कितना चाहिए, 6 बच्चों में एक बच्चा चाहिए। तो बताइए मेरे पास कितने चॉइस हैं, 6 बच्चों में मुझे एक बच्चा चाहिए, कितने चॉइस होंगे, 6। मैं किसी को भी उठा सकता था, तो मैं कह सकता हूं 6C1 इक्वल्स 6। ये पहला इंफॉर्मेशन आया, ठीक है। अब मुझे 6 बच्चों में 6 बच्चे चाहिए, मुझे एक बड़ी भारी चीज उठानी है, और भारी चीज उठाने के लिए मुझे 6 बच्चों की एनर्जी की जरूरत है। तो मैंने 6 बच्चों को बाहर बुलाया। तो आप बता रहे 6 बच्चों में मैंने 6 बच्चों को बुलाया, तो बताओ कितने तरीके से मैं 6, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज है, कितने केसेस से मैं 6 बच्चे बाहर निकाल सकता हूं, कितने बच्चे तरीके से मैं 6 बच्चों में 6 बच्चे सिलेक्ट कर सकता हूं, एक ही तरीके से। तो मैं क्या कहूंगा, 6 चूज 6 इज 1। ठीक, ये 2 कहानी समझ में आ गया। 6C1 का मतलब क्या हुआ, 6 में से मैंने एक बच्चा चूज किया, 6 चूज 1। 6C6 का मतलब क्या हुआ, मैंने 6 बच्चों में 6 बच्चे चुनने हैं, कितने तरीके हैं, 1। 6 बच्चों में मुझे एक बच्चा चुनना है, कितने तरीके हैं, 6। ठीक है, 6 बच्चों में मैंने एक बच्चा भी नहीं चुना,
मतलब अब देखो, मान लो ऐसा है कि म्यूजिक कंपटीशन हो रहा है, लेट्स से सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, ओके। और लेट्स से सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, ओके। और सिंगिंग कंपटीशन में मेरे को अपनी क्लास की नाम भी खराब नहीं करनी है कि भैया जो अच्छा गाता होगा उसी को ले जाऊंगा। तो मैंने क्लास में गया मैं और सारे बच्चों को उठा के उसकी आवाज चेक की कि भाई क्लास की बेइज्जती भी ना हो। तो मैंने उठाया, पहला बच्चा निकला, पहला बच्चा गाया, उसकी आवाज कौवे जैसी, रफी जैसी नहीं आती। दूसरे बच्चे की भी आवाज कौवे जैसी, तीसरे बच्चे की भी आवाज कौवे जैसी, चौथे पांचवे छह, तो छह बच्चों की आवाज कौवे जैसी थी। मतलब कोई भी बच्चे को गाना नहीं आता था। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेइज्जती तो नहीं कराऊंगा अपनी क्लास की। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। क्या क्या, किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि छह की आवाज कौवे जैसी हो? ऐसा केस एक ही हो सकता है कि छह की आवाज कौवे जैसी हो। तो मैंने छह में से एक भी नहीं चुना, 6 चूज 0। तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक तरीका। तो मैं लिख सकता हूं 6 चूज 0 इज 1। ठीक। अब ये कहानी आपको यहां तक समझ में आ गई। अब मुझे चाहिए दो बच्चा। क्या चाहिए? दो बच्चा। अब मुझे 6 बच्चों के ग्रुप में से दो बच्चा चाहिए। ठीक है, 6 बच्चों के ग्रुप से मुझे चाहिए दो बच्चा। अब 6 बच्चों के ग्रुप में से मैं दो बच्चा कैसे निकालूं? तो पहले मैं पहला बच्चा निकालूंगा, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा निकालूंगा। तो फर्स्ट बॉय, फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकेंड स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकेंड स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट पिक करने के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। आई हैव 6 चॉइसेस टू पिक फर्स्ट स्टूडेंट। तो मैंने कहा सर मेरे पास 6 चॉइसेस है, मुझे क्या निकालना है? 6 में से 2 चूज करने हैं, 6 चूज 2। तो मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को पिक करने के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस है। उसी तरीके से सेकंड स्टूडेंट को चूज करने के लिए तो एक बच्चा मैंने निकाल चुका है, तो दूसरा बच्चा निकालने के लिए मुझे 5 चॉइसेस बचेंगे। एंड का मतलब क्या होता है? 6 इंटू 5। अच्छा, मान लीजिए आपने ए एंड बी चूज किया। क्या किया? ए एंड बी चूज किया। सेम वे अगर आप बी एंड ए भी तो चूज कर सकते हो। तो इसमें क्या हो गया, आपने 6 इंटू 5 जैसे किया ना, तो ए एंड बी और बी एंड ए दोनों सेम केस हो, दोनों को आपने अलग अलग ऐड कर लिया। मतलब आपने पहले ए को उठाया फिर बी को उठाया, ये एक केस अलग मान लिया। और फिर आपने पहले बी को उठाया फिर ए को निकाला, इसको भी अलग मान लिया, जबकि ये दोनों अलग नहीं है। ए एंड बी को बाहर मैं निकालूं या बी एंड ए को मैं बाहर निकालूं। और ऐसा सिर्फ ए एंड बी के साथ नहीं हुआ, ऐसा हर पेयर के साथ हुआ। जैसे अगर मैं सी और एफ को भी निकाला तो एफ और सी को भी निकाला। जैसे आप देख रहे हो ना, ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, ए एंड ई, ए एंड एफ, ऐसे करके बी एंड सी, बी एंड डी, बी एंड ई। तो आप क्या कर रहे हो, बी एंड ए भी इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि आप पहले चॉइस में 6 डाल रहे हो और दूसरे चॉइस से 5 डाल रहे हो। तो पहले चॉइस में आप ए से ई एफ, ए से एफ तक किसी को भी ले रहे हो, और सेकंड चॉइस में जो रिमेनिंग है उसमें से किसी को भी ले रहे हो। तो ऑर्डर पे बड़ा ख्याल रख रहे हो। क्या कर रहे हो आप? ऑर्डर का ख्याल रख रहे हो, शफल कर रहे हो। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ऑर्डर को आपने ख्याल रख लिया, लेकिन सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने क्या गलती कर दी, आपने ए एंड बी और बी एंड ए को डिफरेंट मान लिया, जबकि ये दोनों सेम सिलेक्शन है। तो आप इसको ठीक कैसे करोगे? आप इसको ठीक करोगे 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हर पेयर को आपने 2 बार गिन लिया, ए एंड बी, बी एंड ए, बी एंड सी, सी एंड बी। तो ऐसे करके आपने इसको क्या कहा, 6 इंटू 5 बाई 2। तो आपको पता चल गया कि 6 चूज 2 क्या होता है? 6 इंटू 5 बाई 2। ठीक है, अब आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई। देखिए क्या क्या पता चल गई। 6 चूज 1 इज 6, 6 चूज 6 इज 1, 6 चूज 0 इज 1, 6 चूज 2 इज 6 इंटू 5 बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या है, 6 चूज 3। अब 6 बच्चों में 3 बच्चों को चुन रहे हो, तो पहला बच्चा चुनने के लिए आपके पास चॉइस है 6, एंड दूसरा बच्चा चॉइस करने के लिए 5, एंड तीसरा चॉइस करने के लिए 4। अब आपने क्या किया, ए, आप देखो गलती आपने क्या किया, फिर आपने ए बी सी एक काउंट माना, फिर ए सी बी दूसरा काउंट माना, फिर बी ए सी तीसरा काउंट माना, बी सी ए चौथा काउंट माना, सी ए बी पांचवा काउंट माना, सी बी ए छठा काउंट माना। तो ऐसे करके आपने एबीसी को के 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को 6 अलग तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप ऑर्डर का ख्याल रख रहे थे, आपको पता है आप शफल करने में क्या होता है, ऑर्डर का ख्याल रखना होता है।
तो आप इसको ठीक कैसे करोगे? 3 इंटू 2 से डिवाइड करके, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से आप शफल किया, 3 इंटू 2 इंटू 1 से शफल करोगे, तो आप उसको ठीक कैसे करोगे? इससे करोगे, तो 6C3 निकल के आ गया। वैसे ही आप 6C4 कैसे करोगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, पहला बच्चा के लिए 6, दूसरा बच्चा के लिए 5, तीसरा बच्चे के लिए 4 और चौथे बच्चे के लिए 3 ऑप्शन। अब ये क्या हुआ है? ABCD। अब ये 4 को आपने कितने बार काउंट कर दिया? आपने 4 फैक्टोरियल बार काउंट कर दिया, तो उसको ठीक कैसे करोगे? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करके, ठीक है? या आप इसको ऐसे लिख दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 6C5 आपने कहा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब ABCDE को बेसिकली आपने कितने बार काउंट कर लिया? आपने 5 फैक्टोरियल बार काउंट कर लिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेसिकली आपने 6 के कॉम्बिनेशन में, 6 ग्रुप के में सारी चीजें आपने 6 शून्य 6 चूज 0 भी सीख लिया, 6 चूज 1 भी सीख लिया, 6 चूज 2 भी सीख लिया, 6 चूज 3 भी सीख लिया, 6 चूज 4 भी सीख लिया, 6 चूज 5 भी सीख लिया और 6 चूज 6 भी सीख लिया, राइट? आपने ये सारे पॉसिबिलिटीज सीख ली। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है कि इसमें ना लिखने में बड़ा दिक्कत आएगा आपको। देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लिख रहे हो 6 इंटू 5 इंटू 4 और 6 तक है तो ये बड़े आराम से लिख सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो 50 पे लिख दो, 50 चूज 10, तो आपको पता है पहला बच्चा चुनने के लिए 50, फिर 49, फिर 48, फिर 47, ऐसे करके आप कहां तक चले जाओगे? देखो पहला बच्चा चुनने के लिए आपके पास 50 चॉइस है, दूसरा 49, तीसरा 48, चौथा 47, पांचवा 46, छठा 45, सातवां 44, आठवां 43, नौवां 42, 10वां 41। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 लोग हैं, उसकी शफलिंग अलग है। उसको ठीक करने के लिए आपने 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप ये देख रहे हो कि मैथमेटिकली लिखना बड़ा दिक्कत आ रहा है, मैथमेटिकली इसको लिखने में बड़ा दिक्कत आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? आपको फैक्टोरियल मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप देखिए ये क्या है, 50 इंटू 49 इंटू 41 तक ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे ऑलरेडी 10 फैक्टोरियल है, नीचे क्या है? 10 फैक्टोरियल। अब देखिए यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, इसको 50 फैक्टोरियल बनाने के लिए मैं 40 का फैक्टोरियल अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर क्या बन जाएगा? 50 फैक्टोरियल, क्योंकि 40 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 40 इंटू 30। तो मैंने 1 से लेके 50 तक कंटिन्यू कर दिया। अब ऊपर मैंने 40 फैक्टोरियल डाला है तो नीचे भी मुझे क्या डालना होगा? 40 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया? 50 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ गया? 10 फैक्टोरियल। फिर क्या आ गया? 40 फैक्टोरियल। तो मैंने 50C10 को क्या लिख दिया? 50 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल और 40 फैक्टोरियल। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो 50C10 का मतलब क्या है? मुझे 50 बच्चों में 10 बच्चे को चुनना है। तो सेम वे हाउ टू अंडरस्टैंड एनसीआर, तो सबसे पहले मुझे एनसीआर का मतलब समझना होगा। एनसीआर का मतलब क्या है? आई हैव टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। आर, अभी ये सब सीखेंगे लेकिन मैं अभी बस लिखा दे रहा हूं, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके पास किसी बक्से में अगर एन ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है और आपको आर ऑब्जेक्ट चुनना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एनसीआर। जैसे 50C10, तो 50C10 को मैंने क्या लिखा? 50 फैक्टोरियल बाई 40 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। याद है अभी किया था? सेम वे एनसीआर को आप लिख सकते हो एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि देखो 40 प्लस 10 कितना है? 50। ऐसे देखो, अगर मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए 50 में आपको 20 चाहिए, तो आप देख सकते हो 50 कहां तक जाएगा? 31 तक जाएगा, राइट? और ये हो गए मेरे पास चॉइसेस बाय मल्टीप्लिकेशन रूल। एट द सेम टाइम मुझे नीचे ख्याल रखना पड़ेगा ऑर्डर का, तो नीचे मैंने क्या कर दिया? 20 फैक्टोरियल। ऊपर मैं ठीक क्या करूंगा? 30 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, नीचे क्या गया? डिवाइड। तो क्या बन गया? 50 फैक्टोरियल बाई 20 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल। तो सेम वे एनसीआर के लिए आप क्या लिखोगे? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। आज हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर के लिए।
तो बस मैं जस्ट क्लोज कर देता हूं। आज हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखा है। मुश्किल होगा इसको समझना, टाइम लगेगा इसको एसिमुलेट करना, लेकिन अगर आप अच्छे से गौर से समझेंगे तो इसको एसिमुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बस आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और परम्यूटेशन का मतलब होता है शफलिंग। शफलिंग में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तभी हम बार बार डिवाइड कर रहे थे फैक्टोरियल से, सो दैट ऑर्डर का जो हमने वो जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था टू काउंट, उसमें हमने ऑर्डर का ख्याल रख लिया था। तो ऑर्डर की वजह से हमारा आंसर गड़बड़ा रहा था। इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया, उसको शफलिंग से डिवाइड किया ताकि हमारा कॉम्बिनेशन सही रहे, राइट। अच्छा, अब इसको आप समझने के लिए एनसीआर का मतलब, अगर 7C3 का मतलब क्या होता है, 7 ऑब्जेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट चुनना। 20C5 का मतलब क्या होता है, 20 ऑब्जेक्ट्स में 5 ऑब्जेक्ट चुनना, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। 50C10 का मतलब क्या होता है, 50 बच्चों में 10 बच्चों को चुनना। 70C40 का मतलब क्या होता है, 70 बच्चों में 40 बच्चों को चुनना। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है, n बच्चों में r बच्चों को चुनना। और इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो, 40C10 का मतलब क्या होता है, 40 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल। 50C20 का मतलब क्या होता है, 50 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल। और उसी तरीके से एनसीआर का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एनसीआर। आपको पूरे लॉजिक से समझा। मैं ये पार्ट आपको सीधे फॉर्मूला की तरह बता सकता था, लेकिन उससे आपका भला नहीं होता। आप हमेशा कंफ्यूज रहते कि ये फॉर्मूला आया कैसे, लेकिन अब आप अपने उंगलियों से काउंट करके बता सकते हैं कि एनसीआर का फॉर्मूला कैसे आया। क्योंकि अगर आप देखिए तो हमने 6 में बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लिया। देखिए इसको भी मैं उस फॉर्मूले में डाल देता हूं। अब देखिए क्या है ये, तो मैं इसको अगर 2 फैक्टोरियल ऊपर डाल दूं तो नीचे क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल। देखिए ये क्या बन गया है, न्यूमरेटर 6C4 दिखा रहा हूं, तो न्यूमरेटर क्या बन गया, 6 फैक्टोरियल। ये क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये है 4 फैक्टोरियल। ये क्या है, 2 फैक्टोरियल। देखिए क्या है, आपने देख सकता है। उसी तरीके से हमने सारी चीजें की। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ओके बच्चों, सो लेट्स मीट वेरी सून अगेन। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करो, इसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपके असाइनमेंट्स आपको जाएंगे, उसको बड़े डेडिकेशन से करना है। ओके बच्चे लोग, सो लेट्स मीट अगेन वेरी वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।